Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter number 4 and Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. Our next topic is the check your progress, and first of all we will fill the check your progress in our book with the pencil. अब आपको ये check your progress आपकी बुक में ही करना है पेंसिल से. First, an animal with a gills and fins. Okay, you have to write the name of the animals which have both gills and fins. आपको ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके पास फिन और गिल्स दोनों हैं. ऐसे एनिमल कौन है? फिश, FISH, फिश. ओके. सेकेंड, एन एनिमल विद अ hump, दैट इज कैमल. थर्ड, द टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट इज अ नॉन स्लिप सोल्स. ऐसे एनिमल जिसके फुट के नीचे सोल्स जो है वो स्लिपरी नहीं है, दैट इज पोलार बेयर्स. एंड अ बर्ड दैट हैज़ अ फ्लिपर लाइक विंग्स. ऐसी बर्ड जिसके फ्लिपर जैसे विंग्स है, that is penguin. Okay, now our next topic is adaptation in the body part of herbivores, carnivores and the omnivores. Herbivores, carnivores and omnivores are the category of the animals depending on the food they eat. या फिर एनिमल्स को खाते हैं, उनके बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इनकी बॉडी पार्ट्स में क्या क्या एडेप्टेशन है अलग अलग खाने के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे. इन द फर्स्ट इज हर्बीवॉर्स. हर्बीवॉर्स आर एनिमल विच ईट ग्रास और द लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, roots, seeds and bark of the plants. Cow, rabbit, squirrel, sheep, deer, bisons, zebras, elephants and horses are the herbivores. Okay, so first of all herbi, HERB, herb, HERBI, herbi. Herb means plants and wars means eating. Okay, ऐसे wars means eating or animals, or herbivores are those animals which eat all the parts of the plants, like fruit, like flower, like leaves, like stem, like roots, etc. whatever it is. Okay, ऐसे प्लांट. हर्बी का मतलब क्या होता है? HEBIR. हर्बी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स. हर्ब्स होते हैं श्रब्स, ट्री, हर्ब्स हमने पढ़े थे. हर्ब्स का मतलब, हर्बी का मतलब क्या होता है? प्लांट. वॉर्स का मतलब होता है ईटिंग. प्लांट खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवॉर्स. ओके, आपको ऐसे याद रखना है. प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवॉर्स. प्लांट्स का कोई भी पार्ट हम खा सकते हैं. ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हो, प्लांट्स के पत्तियां खा रहे हो, उनकी रूट्स को खा रहे हैं, उनके स्टेम्स को खा रहे हैं, उनके फ्रूट्स को खा रहे हैं, उनके फ्लावर्स को खा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? हर्बीवॉर्स. ओके, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, रैबिट्स हो गया, डियर हो गया, स्क्वायरल मतलब गिलहरी हो गया, शिप हो गया, जेब्राज हो गया, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये सब क्या करते हैं? प्लांट्स या एडेप्टेशन है. देखते हैं. Herbivores have a sharp front teeth which help them to bite into grass. They have flat, grinding teeth at the back which help them to chew grass. The sharp front teeth help a squirrel to bite hard nuts. Okay, the front teeth, the front two teeth, that is incisor, have a sharp teeth. They have a sharp or the pointed teeth. Okay, so they can eat, so they can bite the food into the small grass. Grass means bites. Okay, into the small bites. And the teeth which is present at the back after the incisors, the canine, molars and premolar, they are flat and the broad side. Flat means chapta, flat surface, broad means chauda. Okay, they have a flat and the broad, so they can grind, so they can make the food particles, convert the large food particles into smaller particles, and then they can eat the food easily. Okay,
हर्बीवोर्स के जो तीत होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो कैसे होते हैं? दो आगे के दांत तो क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि जो भी हम खाना वो क्या कर सके, हम बाइट में तोड़ सकें। क्लियर? जैसे हम गाजर वगैरह खाते हैं, प्लांट्स जो एनिमल्स जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनको बाइट में तोड़ने के लिए आगे के जो दो दांत होते हैं वो तो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, तीखे नुकीले होते हैं। और पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट। फ्लैट मतलब चपटे, ओके, एकदम फ्लैट होते हैं। और ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े, ताकि जो खाना उन्होंने आगे के दो दांत से तोड़ा है उसको ग्राइंड कर सके। ग्राइंड का मतलब बहुत तभी आप उसे पीस पाएंगे। क्लियर? आप पत्थर भी लेंगे तो नुकीला पत्थर नहीं लेंगे, पीसने के लिए आप क्या लेंगे? एकदम चौड़ा, जिसकी सरफेस क्या एकदम फ्लैट हो, चिपटी हो, आप ऐसा पत्थर लेंगे ताकि वो आसानी से पीस सके। तो आगे के दो दांत शार्प, पीछे के दांत फ्लैट, आपको बस इतना याद रखना है। क्लियर? आप देखेंगे गिलहरी के आगे के दो दांत क्या होते हैं? एकदम तीखे, पॉइंटेड, निकले हुए, शार्प होते हैं, ताकि वो जो एकदम जो भी वो सीड्स खा रही है उनके ऊपर की कवरिंग क्या होती है? एकदम हार्ड होती है, टफ होती है, तो वो उसे आसानी से तोड़ सके। क्लियर? सो herbivore have the two types of teeth. The front teeth are sharp and the back teeth are flat. आपको सिर्फ दो याद रखना है कि herbivore के आगे के दांत तो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, और पीछे के दांत क्या होते हैं? फ्लैट। क्लियर? Second, the trunk of an elephant helps to break the branches. The long neck of the giraffe helps to reach leaves of tall tree. The trunk means that sound. Okay, the trunk is too strong of an element, so they can break the large trees or the branches of the tree into parts. And the neck of the giraffe, you can see the neck of the giraffe is too long to reach the taller plant. Okay, जो हाथी की जो सूंड होती है वो क्या होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो आसानी से जो भी पेड़ है, जो भी उन्हें ब्रांचेस, टहनियाँ उन्हें खानी है, वो उसे आसानी से तोड़ सके। और जिराफ की जो नेक होती है वो क्या होती है? लंबी, ताकि वो बड़े बड़े प्लांट्स की लीव्स, पत्तियों को खा सके। सो दिस आर दी एडेप्टेशन। क्लियर? Second category is carnivores. Okay, CARNI. Carni means flesh, meat. दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। टाइगर, लायन, फॉक्सेस, स्नेक्स, ईगल, वल्चर एंड स्पाइडर आर दी कार्निवोर। ओके, सो यू डोंट नीड टू मग अप, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दी टर्म। आप नाम देख के आपको याद हो जाएगा कि कार्नी मीन्स मीट, मांस, और वॉर्स मीन्स ईटिंग। ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं? मांस। ओके, सो दोज एनिमल who eat the other animal, the meat, the flesh of the other animal are known as the carnivores. FLESH, flesh means meat, mass. Okay, and the name of the animals are tiger, lion, foxes, vulture, eagle, snakes, all are carnivores. ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स के नाम कौन कौन से? टाइगर हो गया, लायन हो गया, फॉक्सेस हो गया, स्नेक्स हो गया। ओके, first, carnivores such as lion and tiger have a strong jaw and long sharp teeth to tear and eat flesh. Eagle and vulture are also carnivore. They have a sharp beak to tear flesh. Okay, now we need carnivore animals need to tear or to break down the fleshes into smaller parts so they can eat easily. So their teeth are sharp, pointed and long and the very strong, so they can tear out the flashes easily. Okay, and in the third class we have learned that the eagle and the vulture has a strong beak, pointed beak, so they can catch their prey easily, catch their food easily and eat them and break down into parts. स्ट्रॉन्ग होता है, और उनके जो टीथ होते हैं, आपने
लायंस के, टाइगर्स के आगे के जो दांत देखे होंगे, ऊपर दो नीचे दो, क्या होते हैं, लंबे होते हैं। क्लियर? क्यों होते हैं? और एकदम पॉइंटेड होते, एकदम तीखे, एकदम नुकीले होते। क्यों? ताकि वो दूसरे एनिमल्स को आसानी से मार सके, मांस को आसानी से फाड़ सके। क्लियर? और आपने 3rd क्लास में पढ़ा था, जो ईगल्स और वॉल्चर्स होती है उनके आगे की जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो क्या होती है, आगे से थोड़ी नुकीली होती है और एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो अपने एनिमल्स को आसानी से पकड़ सके और उनको भी फाड़ तोड़ के उनको खा सके। क्लियर? Lion, tigers and cheetahs have strong legs and can run fast to chase their prey. As you know very well that the lion, tiger hunt their animal to eat them. They have a strong legs, so they can run fast over their food. Okay? और जो लायंस, चीता या टाइगर्स होते हैं, उनके पैर क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। क्यों? ताकि वो अपने शिकार के पीछे आसानी से और तेजी से भाग सके। ओके? चेज मीन्स टू रन बिहाइंड। चेज का मतलब क्या होता है, पीछे भागना। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज omnivores. OMNI, omni. Omni means plants and animal both, and wores means eating. Omni means plant and animals both. Those animals who eat both plants and animals are known as the omnivores. Okay? Omnivores are animals which eat both plants and animals. Bears, red foxes, ostrich, crow and ants are the omnivores. Okay? Omnivores किसे कहते हैं? OMNI, omni का मतलब क्या होता है, प्लांट और जैसे बेर्स भालू, रेड फॉक्सेस फॉक्स का नाम है, ऑस्ट्रिच बर्ड का नाम है, क्रोज एंड आंट्स। ओके? आप बेर्स भालू को देखेंगे वो शहद भी खाते हैं, हनी भी खाते हैं और फिशेस भी खाते हैं। फॉक्स भी दोनों चीज़ें खाते हैं। ऑस्ट्रिच भी प्लांट्स को या फ्रूट्स वगैरह भी खाती होगी और छोटे मोटे जानवरों को भी खाती है। क्रो, कौवे भी आप देखेंगे, आप उनको रोटी डालो तो रोटी भी खाते हैं। कभी छोटे मोटे चूहे वगैरह भी वो खाते हैं। ओके? और ह्यूमंस, इंसान भी किस में आते हैं, ओमनिवोर्स में, क्योंकि आप जानते हो कुछ इंसान खाना भी खाता है, रोटी सब्जी प्लांट से मिलता है हमें, ये भी खाता है। और कुछ इंसान फिशेस, मछली या मांस, नॉनवेज भी खाते हैं, चिकन वगैरह भी खाते हैं। तो ह्यूमंस भी क्या है, ओमनिवोर्स है। क्लियर? Omnivore are adaptation of both herbivores and carnivores. All omnivores eat fruits and vegetables. Some hunt eat their food like carnivores. Some eat their dead animals. Many eat eggs of other animals. Okay? So omnivores के अंदर जब वो प्लांट भी खा रहा है और एनिमल भी खा रहा है, तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों के क्या होंगे, एडेप्टेशन। आगे के दांत थोड़े से तीखे होंगे, पीछे के क्या होंगे, चौड़े होंगे और फ्लैट होंगे। ओके? कुछ एनिमल्स तो शिकार करके खाते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ उनके सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ मरे हुए जानवर जैसे फॉक्सेस वगैरह है, वो जो होते हैं वो मरे हुए जानवर खाते हैं, जैसे क्रू वगैरह। ओके? कभी आप देखना कि रोड पे कोई मर जाता है, कोई एनिमल्स, तो क्रो वगैरह उनको खाते हैं। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर. नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम. फर्स्ट इज ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, बारीक काटना. जॉ मीन्स जबड़े एंड चेज मीन्स पीछा करना. डू दिस. Check your progress in your book with the pencil, then click the picture of check your progress and the word meaning both and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको check your progress बुक में पेंसिल से लिखना है और जो वर्ड मीनिंग है वो रफ नोटबुक में करके दोनों की पिक्चर 9 बजे से पहले स्कूल के WhatsApp नंबर पर आपको सेंड करनी है. थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.